We of course have the world's largest youth population और एक बूमिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है यहाँ जो खड़ा हो चुका है. देयर इज अ रिन्यूड फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एज वेल, बिकॉज जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू माइन इट्स वेरी ओन फ्यूचर, innovating, investing and leading the way. But there are also challenges, whether it is to do with finding patient capital for startups or the fact that there is skilled workforce required to scale. Ladies and gentlemen, I have three brilliant speakers joining us today. I'd like to first invite on stage Ishpreet Singh Gandhi, founder of Stride Ventures and Stride One. Ishpreet is someone who is fueling India's startup ecosystem by providing innovative financial solutions to ambitious entrepreneurs. A very warm welcome to Ishpreet. Also put your hands together for Sneh R. Vaswani, co-founder and CEO of Miko. He's someone who's reimagining the future of AI-driven consumer robotics and taking Indian innovation to the global stage. A warm welcome also to Anurag Kedia, co-founder at Pilgrim, a direct-to-consumer beauty and personal care brand that's showing great growth and also scaling offline. And I'm the lucky lady who gets to speak with these very accomplished founders, and I'll be moderating. Welcome to the three of you once again. So, before we begin, I wanted to just put out some facts for our audience. The total valuation of Indian unicorns last year was hovering around $385 billion. That's larger than the GDP of some countries. Last I checked, there are 120 unicorns in India. And it is something that people take inspiration from. सबको लगता है कि हम भी एक शुरुआत करें और हम भी इतना बड़ा यूनिकॉर्न खड़ा कर सकते हैं. एंड होपफुली यू आर ऑन योर वे देयर, राइट? बट आइडिया तो सबके पास आते हैं, राइट? इस ऑडियंस में लोग बैठे हैं जो सोचते हैं, दिन में 3-4 आइडिया आते हैं. बट व्हेन डू यू नो दैट एन आइडिया दैट यू हैव इज वर्थ कन्वर्टिंग इनटू अ बिजनेस एंड हैज द पोटेंशियल ऑफ रीचिंग दैट यूनिकॉर्न स्टेटस? इशप्रीत, आपसे शुरुआत करेंगे. First of all, thank you ABP for calling us here, and pleasure being on the stage. As you rightly mentioned, ideas काफ़ी है. India is full of ideas. We have large population, and at least at Stride we have seen 11,000 businesses. So we know that, for example, these two entrepreneurs whom we've been a part of the journey, they come from different sectors. तो हर एक sector में हर एक disruption का एक idea है, and Shark Tank and those initiators have already fueled it. I think most important thing is when you see at the idea, right, what kind of target market you are trying to capture, and then how you're planning to capture with what kind of people makes it unique. They work in certain sectors, and we have invested into over 200 businesses. All of them have come generically, say, around consumer, fintech, electric. So every industry, well, you see it being very general. When the way they go about the idea is very different. What kind of people they hire, what kind of execution capabilities they have. So I think it's the founder and the team around it which makes the idea unique. Right. Journalist idea to curated idea in order to make sure the successful businesses achieve what they achieve is the journey behind it. Absolutely. Because perceptionally it looks very rosy, that the idea to business and the unicorn numbers which you mentioned. Right. A lot of things which goes behind that unicorn. Absolutely. I think it's that element of saying that this idea, how I'll achieve this idea from stage 1 to 2 to 3 to 4, and that's how my journey will evolve, and I'll keep on executing with this elements of initiatives which I'll keep on doing at various stages, including getting right people, right processes. That's what make founders unique. I do want to talk about the right people, how you get them, but I want to move to Pilgrim first. हम देखते हैं कि एक crowded market है, पर आप एक ऐसा product लाते हैं जो अपने लिए बहुत एक space, unique space create कर देता है. ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि लोग सोचते हैं कि unique product आना चाहिए, but you entered a very difficult and a crowded market. So I want to understand why you did that. So राधिका, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है 12-13 साल में ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में ही रहा हूँ. मैंने स्पा, सैलून, आयुर्वेदा क्लिनिक काफ़ी साल 12-13 साल चलाए हैं, तो ये मार्केट की थोड़ी सी समझ थी.
एंड जैसा कि इशप्रीत भी कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडिया से। आइडिया कई बार इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे आप काम करना चालू करते हैं, आप कंज्यूमर्स के साथ बात करते हैं, बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करते हैं, लोगों से आजू बाजू में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे जाती है, आप चीज़ों को और रिफाइन करते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहला ही आपने जो लॉन्च किया बहुत चल गया, कई बार होता है कि थोड़ा टाइम लगता है चलने में, पर जब तक ये एजिलिटी है, जब तक ये सीखने की चाह है कि हमें कुछ अच्छा करना है अपने कस्टमर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, आई थिंक मौका बहुत मिलेगा। इसके पहले का जो पैनल था कि इंडिया का स्वर्णिम काल आ गया है, नहीं है, मेरा तो मानना है कि इससे अच्छा शायद समय किसी के लिए भी अपना बिजनेस करने के लिए आज से पहले नहीं था। एंड यदि आपके मन में थोड़ी भी चाह है कि अपना बिजनेस बनाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इशप्रीत जैसे फंड चलाते हैं, वो डेट में भी सपोर्ट करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं। बहुत सारे और अच्छे अच्छे थीमेटिक इन्वेस्टर्स हैं, जिस भी सेक्टर में आप करना चाहें। स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूद जाओ, बाहर से खड़े होकर स्विमिंग सीखना मुश्किल है, थोड़ी ठंड लगेगी, बट सीख ही जाएंगे, हाथ पैर मारेंगे। अभी इतना अच्छा माहौल इंडिया में बन रखा है, पिछले 15-20 साल में जो ग्रोथ आई है, मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। एंड हमारी जर्नी में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बट लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। बट यू नो, आई डोंट वांट टू डैम्पन दिस स्पिरिट, पर सच्चाई ये भी है कि सब आइडियाज इस तरह स्केल नहीं करते। मीको ने स्केल किया है, आपने स्केल किया है, तो एक परसिवियरेंस, एक क्वालिटी है जो चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर पे। बट आपको लगता है, व्हेन वाज द पिवटिंग पॉइंट, कि आपको लगा कि भाई मैंने ये एआई रोबोटिक्स की थीम पकड़ी है, मैं रोबोट्स बनाना चाहता हूं, और एंथुजियाज्म भी था आप में, एग्जीक्यूशन पे बात आके रुकी या आइडिया पे, और परसिवियरेंस का रोल एक एंटरप्रेन्योर के लिए? फर्स्टली थैंक यू एबीपी। जहाँ तक हमारे जर्नी की बात आती है, पहले 2.5 साल जीरो रेवेन्यू, 23 प्रोडक्ट पायलट्स, 50,000 बच्चों के साथ, एंड इंक्रीमेंटली द आइडिया गॉट बेटर एंड बेटर। वी न्यू, हमें पता था प्रॉब्लम कहाँ है। पेरेंट्स से हम इतना इंटरेक्ट कर चुके थे, बच्चों से इतना इंटरेक्ट कर चुके थे, हम देख रहे थे सोशल इमोशनल वेलबींग बच्चों की कम होते जा रही है, इम्पेशंस बढ़ रहा है, दोनों पेरेंट्स काम करना चालू कर रहे हैं, कम टाइम मिलता है, बच्चे को कैसे हम एंगेज करें, एडुकेट करें, और पेरेंट्स को उनके मैट्रिक्स मिले। तो इस दौरान हमारा कस्टमर पेरेंट है, हमारा यूजर बच्चा है, तो उन दोनों को की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हुए एक प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करते हुए बनाना, आई थिंक मीको की जर्नी, जैसी कंपनी ऐसी आप बोल नहीं सकते कि ऐसी कंपनी यूएस में है, जापान में है, तो हम इसको उठा के ऐसे कुछ हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मीको की जर्नी में हर पॉइंट, हम हर आगे अगले 2-3 सालों में जो भी हम प्लान कर रहे हैं, हम उसको डेटा के साथ, प्रीवियस इनसाइट्स के साथ हम लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं, विथ फुल honesty, sincerity and resilience. That is the only way. I think idea beyond a point, खाली execution matter करता है. I just wanted to support Sneh, बड़ा modestly he has put across what he has done. But 2013 में IIT बॉम्बे से पास आउट हुआ, 2015 you started, and for the first 2 years zero revenue. इंडिया में रोबोट बना के लास्ट ईयर इन्होंने 300 करोड़ की सेल की है. Wonderful. So and he did it with 1/10 of his salary. जो लास्ट सैलरी छोड़ के गया था, उसके the salary which he was till 3 years back. I don't want to mention that even, but it was at 1/10 of his salary, 3 years, zero revenue. He could have gone back, said कि मैं जॉब करूंगा, 4-5 करोड़ कमाऊंगा साल का, और प्रोफेशनल करियर में रहूंगा. He was one of the resilient founders who was around saying कि मैं कोई करना है और ये करके रहूंगा. तो देखिए कितना बिलीव चाहिए आइडिया में, और एंड यू नो द फैक्ट दैट काफी एंटरप्रेन्योर्स ये भी कहते हैं कि पेशेंट कैपिटल मिलना मुश्किल है, जो लोग इंतजार करने के लिए रेडी हों। आपको वैसा सपोर्ट मिला है, ये अच्छी बात है। बट इसमें आपसे जानना चाहूंगी कि पेशेंट कैपिटल में आप कितना बिलीव करते हैं? यू नो, यू आर समवन हु सपोर्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम अर्ली स्टेजेस, जैसे आपने मीको को सपोर्ट किया है फॉर एग्जाम्पल। काफी इन्वेस्टर्स नहीं करते, इट्स अ टाइम ऑफ यू नो क्विक रिटर्न्स। So patient capital की definition, Radhika, बड़ी varied है. Actually, I come from a small business background myself. When I entered the industry, because I am practically kind of a founder myself, so I relate with those challenges. तो हमें लगा कि debt की use case ज़्यादा है. जैसे Sneh sells lot of his robots in US. तो seasonal requirement होती है. तो seasonal requirement में क्यों ये अपनी equity dilution करे, उनके लिए एक structure क्यों नहीं create कर सकते जहाँ पे we do debt
व्हेन ही रिक्वायर्स एंड देन दैट्स सीजन कि अमेजोन को देना है, किसी क्लाइंट को देना है, 6 महीने लगेंगे, जनवरी बॉक्सिंग डे पे सेल होगी, जनवरी में पैसा आएगा. तो आई थिंक वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द यूज केसेस ऑफ बिजनेसेस एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी कि पेशेंट कैपिटल इज जस्ट अ वर्ड, इट्स अबाउट फाउंडर कैपिटल. क्या उस बिजनेस को किस टाइप की कैपिटल चाहिए और वो कैपिटल आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते. एंड वी ट्राइड कस्टमाइजिंग, फिर हमने डेट के साथ इक्विटी भी किया इस बिजनेस में. आई थिंक इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग फाउंडर इन देयर जर्नी इज व्हाट कैपिटल इज. जो इन्वेस्टर वो समझता है और वो फाउंडर्स रेजिलिएंट फाउंडर है, उनको बैक करना है. I think whether it's 2-year investment or a 10-year investment, I'm sure in his cap table also there are a lot of investors जिनकी फंड लाइफ खत्म हो गई. 5-7 साल का फंड तो खत्म हो गया, बट उन्होंने कहा ये फाउंडर इतना अच्छा है कि मैं उसको नए फंड से भी बैक करूंगा. तो पेशेंस कैपिटल थी नहीं, वो बन गई. So it's about that journey of how an investor view as a founder. I think that's a great point. It's about the founder. Anurag, आपसे ये जानना चाहूंगी कि there are a lot of young entrepreneurs probably watching us. जब किसी इन्वेस्टर को पिच करने जाएं, थ्रू योर जर्नी, व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स यू मेड एंड यू लर्नड फ्रॉम? सो क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर्स के साथ अब करीब 20 साल से काम कर रहा हूं, तो बहुत सारी गलतियां की और बहुत सारी चीजें सीखी हैं. बट एक जो दो बड़ी सीख रही है मेरे साथ कि एक कोई भी जब अर्ली स्टेज में कोई फाउंडर किसी इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है तो एक ऑनेस्टी, एक इंटीग्रिटी के ऊपर, क्योंकि ये नया रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर आपको 5 साल 10 साल से जान रहे हैं. तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि यार ये आदमी ईमानदारी से बात कर रहा है क्या, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, तो जब ऐसे मौके आते हैं तो क्या ये खराब न्यूज, विल ही शेयर द बैड न्यूज ऑल्सो विथ मी, या वो छुपाने की कोशिश करेगा. तो एक वो ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, जो भी आप बोलना चाहें कि इस आदमी के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं कि नहीं. तो एज अ फाउंडर बहुत जरूरी होता है कि कई बार हम अपना अच्छा इंप्रेशन डालने के चक्कर में कई बार चीजें कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, जो मेरा मानना है कि बहुत बैकफायर करती है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा बुरा जो भी है सामने आप रख दे. इन्वेस्टर्स भी सीजनड और मैच्योर हैं, उन्होंने भी लाइफ देखी हुई है, उन्हें पता है कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा. खासकर यदि आप अर्ली स्टेज फाउंडर हैं तब तो हो ही नहीं सकता है कि बिजनेस में सारी चीजें अच्छी हों. तो इसमें जो भी अच्छा है बुरा है सब कुछ ओपनली बताना, बिजनेस में रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, सब कुछ एक ईमानदारी से सामने रख पाना. एंड जैसे जैसे बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है एक रेगुलर अपडेट देना, जो भी आप फ्रीक्वेंसी तय करते हैं कि भाई ये अच्छा हुआ है, ये बुरा हुआ है, हम ये चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए. बिकॉज जब इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका भी स्किन इन द गेम है, वो भी चाहते हैं कि आप अच्छा करें. तो उनको आप बताएं कि क्या हमें मदद चाहिए अलग अलग चीजों के लिए. कभी हो सकता है इंट्रोडक्शन चाहिए हो, कभी हो सकता है किसी से हेल्प चाहिए हो कैपिटल के लिए, कभी हो सकता है बैंक लोन चाहिए हो, कभी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ हेल्प चाहिए हो. सो एन ओपन एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद योर इन्वेस्टर्स. ने आपने अभी रिसेंटली एक राउंड क्लोज किया है फंडिंग का. कंपेयर दिस राउंड टू से योर अर्ली स्टेज पिचेस, एंड आपको डिफरेंस दिखता है किस तरह से इन्वेस्टर्स व्यू करते हैं? आई थिंक हमारे अर्ली स्टेजेस में मैंने शायद 500 इन्वेस्टर्स को पिच किया होगा और ना सुना होगा. और उन्होंने बोला जब तुम्हारा रोबोट बन जाए तब बताना, जब पहला इनवॉइस रेस कर लोगे तब बात करते हैं. I'm sure people would have laughed on you. हाँ, अरे बहुत. मैं तो उन किस्सों पे तो जा भी नहीं रहा हूँ. आप सुना सकते हैं वो किस्से. So, but I think across every investor जो मीको में आए हैं आज तक, and I'll be very honest कि we probably एक फ्रंटियर टेक कंपनी, हम डीप टेक कंपनी, कंज्यूमर टेक कंपनी की जो ब्रांड भी है और बैक एंड टेक्नोलॉजी भी, हैवी टेक्नोलॉजी खुद का बना रहे हैं. ये डुअल कॉम्बिनेशन के समझने वाले बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं और सारे हमारे कैप टेबल में थैंकफुली हैं अच्छे से. एंड इस पूरे जर्नी में हमें इक्विटी कम डेट, जो स्ट्राइड ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, एक कॉमन पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है सभी इन्वेस्टर्स में. वो कॉमन पैटर्न यही रहा है कि वो सभी का प्रीवियसली कोई एंटरप्रेन्योरल कुछ एक बैकग्राउंड था जिससे वो रिलेट कर पाए थे कि हाँ ये इस रास्ते में जा रहे हैं. उन्होंने शायद पास्ट में कभी कोई बिजनेस रन किया है, दे कैन रिलेट टू द चैलेंजेस. जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोस्ट वेंचर डेट फर्म्स अगर आप देखोगे, आपके पास बैंक में जितना कैश है उसका एक सर्टेन एक्सपोजर वो लेंगे एंड दे विल सपोर्ट यू. उनकी भी एक रिस्क प्लानिंग एंड रिस्क थीसिस रहती है. कोविड हुआ था and we had to scale up after 2021, 2022 में भी we had to scale up. Capital कम था हमारे पास and they immediately approved a 100 CR
लाइन टू अस क्योंकि सीजन आ रहा था, रिक्वायरमेंट थी, एंड आई एक्सप्लेन कि ये चैनल्स हैं, यहाँ ऐसे सेल थ्रू होगा, इतना सेंसिटिविटी एनालिसिस प्लान किया. विद इन a matter of few days it was done, and we crossed through 2 seasons of growth primarily on debt with a very creative structuring of US requirement, India requirement. ये इतनी flexibility I think early stages में banks के through नहीं मिल पाती. So if you're investor and if you're investor आपके साथ समझ रहा है, he's been through that journeys of building a business themselves, that is the best investor to have. So in our journey हमने VC fund से equity लिया है. हमारे lending arm, they also Stride has also invested in equity in the company. Family offices से भी लिया है. Family offices who run businesses 20-30 साल business चलाया है, जिन्होंने business के ऊपर नीचे देखे हैं, वो relate करते हैं हमारी journey से, and then they support all out, which is just phenomenal. I think so that is the common pattern which when early stage हो कि growth stage हो, go for those investors जिन्होंने past में they have some business running background per se is very बहुत फर्क पड़ता है. आपने अभी कोविड की बात करी तो उसके बाद हमने देखा था there was a surge in funding, करीब $25 बिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में आए थे. उसके अगले साल एक ह्यूज डिप देखा 11 बिलियन, और अगर 2024 की बात करें तो 12 बिलियन, राइट? तो वी आर नोवेयर क्लोज टू दोज 2022 लेवल्स. ऐसा क्यों हो रहा है इशप्रीत? और ये भी जानना चाहूंगी कि जो फंडिंग आ रही है कहाँ जा रही है, किस तरह के सेक्टर्स हैं जहां पे स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जा रहा है? मेरे को पता नहीं मतलब ये किस सेंस में बोलना चाहिए इसका आंसर, बट इन्वेस्टर कम्युनिटी में ना एक भेड़चाल होती है कि एकदम से कोविड के बाद दुनिया लगी कि टेक पे ही चलेगी. एग्रीकल्चर भी हम सारा टेक पे करेंगे, एजुकेशन भी टेक में ही होगी, राइट? सब कुछ जूम कॉल, वर्चुअल कॉल. सो एवरीवन ग्लोबली, नॉट इन इंडिया, आई डोंट थिंक इट वाज इंडिया फिनोमेना, इट वाज अ ग्लोबल फिनोमेना. पीपल सेड कि इंडिया में सारे फार्मर्स टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो जाएंगे रातों रात. सो एग्रीटेक में इन्वेस्टमेंट चली गई. And then we understood there are a lot of big edtechs who came in without real value add, right? So the large part of this capital went into those sectors where people said that technology will give a healthcare change, a edtech change, which actually in innovation didn't happen as much. So that was the spike which we saw globally. US also saw that, India also saw that. And then came the aspect profitability and business model. मतलब पहले ये होता था आप मिलके गए इन्वेस्टर से, आप घर पहुंचे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए. Like 21 was that time. I doubt it was ever that easy. 21 was that time. They'll tell you कितना easy था इनको capital raise करना. Nurag was not on capital raising mode that time, but it was that easy. Trust me, in some cases it was term sheet was signed after. It was unfortunate हुआ है like scenarios. तो I think उसके बाद realization हुई कि businesses को ultimately तो valuation profitability से बनानी है या business model से बनानी है. So that's where the rationalization kicked in and said, globally it kicked in and said investors wanted returns from the fund managers. Luckily our structures were like that we were always very prudent कि we had to give debt, so our was quarterly cash flow out to investors. So we were always very particular about it, but at the same time slippages हुए तो हमें भी बड़ा cautious रहना पड़ा. So I think that was the pivotal moment. अब थोड़ी rationalization आ गई है, but I think we have reached a curve which is very very important for the industry. For example, when Anurag, the kind of business is built is purely on thought of profitability. एक crowded space में जो आपने कहा, the way he has come out and build a business, Sneha has always thought about profitability. Profitability first, business model, proven approach, which should be thumb rule. Yes. Is come back in vogue. And that's how it's getting right. And there was a time when not profitable companies were listing and people were, making a beeline. We've also seen that phase of Indian startups. अनुराग और स्नेह, आप दोनों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, और जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनके शोल्डर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब क्रिएशन करिए. मैन्युफैक्चरिंग इज अ वे टू डू दैट, राइट? पर हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं वो शायद टेक्नोलॉजी की तरफ, जैसा उन्होंने भी कहा, जा रही हैं. तो आप दोनों से जानना चाहूंगी, आपसे पहले अनुराग, कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय एज एन एंटरप्रेन्योर किस तरह की दिक्कतें आपको आई हैं, व्हाट कैन मेक इट इजियर? सो आई थिंक हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हम करीब करीब 12 पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. एंड हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि फार्मा में, ब्यूटी में काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ में रही है, वहाँ पे टैक्स शॉप्स वगैरह रहे. तो ये टैक्स शॉप्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आने बंद हो गए, तो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन नॉर्थ में रहा है. तो एक गवर्नमेंट जो शायद थोड़ा सपोर्ट कर सकती है कि अभी भी बहुत पॉकेट्स है जहाँ पे कि और डेवलपमेंट हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू,
वहां पे यदि थोड़े टैक्स स्वैप्स दिए जाएं 5 साल 10 साल के, बहुत लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है, तो वहां पे बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली क्योंकि सेक्सी नहीं है, बहुत लोग ग्लैमरस नहीं है, बहुत लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, कैपिटल रेस काफी हुआ है इसमें। एंड इनफैक्ट आप स्पेशलिटी केमिकल्स, बिकॉज हम लोग 2 तरीके के प्रोडक्ट्स में यूज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। एक है कमोडिटी, जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, ग्लीसरीन है, ऑयल्स हैं, बटर्स हैं, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिसको स्पेशलिटी केमिकल्स बोलते हैं जी, बहुत सारी हमने कंपनीज लिस्ट होते हुए देखी है, फंड होते हुए देखी है, बहुत अच्छे मल्टीपल्स पे फंड होते हुए देखी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के काम में कभी भी फंडिंग की कमी रही है। एक और जो आई थिंक मुझे थोड़ी सी कमी इंडिया में लगती है कि स्पेशलिटी केमिकल्स पे और बहुत काम हो सकता है। अभी भी हम लोग जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में काफी डिपेंड करते हैं कि जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूरोप से, बाकी कंट्रीज से, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज या तो वहां की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है या वो क्वालिटी का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है। जबकि जो कमोडिटाइज्ड इंग्रेडिएंट्स हम इंडिया से खरीद रहे हैं। तो यदि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की डिस्कवरी भी इंडिया में हो सके, रियल वैल्यू क्रिएशन वहां पे है, तो थोड़ा शायद गवर्नमेंट को यहां पे सपोर्ट करना पड़ेगा R&D इन्वेस्टमेंट्स में। हमारे सेक्टर में, फार्मा में बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटी है कि ये नॉर्थ में तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो गया, बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी हो पाए, R&D में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इसका फायदा देश को बहुत कुछ मिलने का चांसेस है। इसमें आप क्या कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में? तो मैंने 2015 में हमने चालू किया था, और हमने जनवरी 2015 में मीको चालू किया था, एंड तब मैन्युफैक्चरिंग के पॉलिसीज एंड ओपनिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का पहला कदम इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो टॉप लेवल सेंटर से डायरेक्शंस क्लियर थे, दिस इज वेयर वी आर हेडेड टू। ग्राउंड लेवल पे मैन्युफैक्चरर्स स्टिल हैड टू ओपन अप देयर शॉप एंड उनको चालू करना था, दैट फेज। सो पिछले 10 साल में जो मैंने ट्रांजिशन देखा है इन द वे थिंग्स हैव मूव्ड, अब 2016 में हमें किसी भी एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया था कि नहीं हो पाएगा, एंड अभी आई थिंक आई हैव एब्सोल्युटली no suggestions to the government on this. They've done a phenomenal job of setting up the ecosystem, खोल के रख दिया है पूरा इकोसिस्टम। अब खाली हम सब के ऊपर है मेहनत करके अपना काम करके आगे बढ़ो। इट इज अबाउट द माइंडसेट, इट इज अबाउट द पीपल। अब हमारे पास टैक्स रिबेट्स हैं, वी हैव PLI, हमारे पास सारे के सारे प्रोविजंस एंड पॉलिसीज आर इन प्लेस। हमारे यूएस के कस्टमर्स हमको क्लियर बोले हमको इंडिया से लेना है, हमको That is absolutely wonderful, and that is the goal, right? That is the goal, absolutely. और ये मैं पिछले 6 साल से आई हैव बीन गोइंग टू ऑल इंटरनेशनल फेयर्स, जर्मनी, US, लंदन, जहां पे हम हमारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं एंड बायर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कम की ये मेरे को चाहिए। पास्ट फ्यू इयर्स में ये आना स्पेसिफिक हुआ, ठीक है आप श्योर हो ये इंडिया फैक्ट्री से आने वाला है, हाँ देन वील टेक इट। तो ये चीज शिफ्ट मैंने 2015 से पहले कभी सुनी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बिफोर स्टार्टिंग मीको ऑल्सो वी बीन इनटू nano manufacturing, into when I was working for Siemens, so I've seen how things have been at that point of time, but now I think there is nothing to complain. The stage is set. आप अपनी दुकान खोलिए, मैन्युफैक्चरिंग चालू कीजिए, all policies, lawmakers up to ground level to the center are there for us to support. और ये मैंने खुद नोटिस किया है, being at the state side, being at the center side, people, government side said it's a red carpet for anyone who wants to start doing any manufacturing here. The ecosystem is very much in place, but मैं ये पूछना चाहूंगी कि is the talent in place? Before I come to that, I think I'll echo his thoughts. अगर कोई इधर स्टार्टअप चालू करना चाहता है, हमने अभी DPIIT के साथ एक agreement sign किया है. We were today in the morning talking about some Maharashtra innovation with the government. I think it's the best time. Startups and startup concentration in India is amazing. Yeah. Government really wants to make it happen. और enablements आए हैं. And he's met all the ministers also to get things done. I remember he's going and meeting all the people, making them understand product ले जाके. So I think there's a really good time. Access and approachability is now there, and that's wonderful. So you can literally email any officer or minister in any ministry and जाके आप अपना what are we at the scale जो हम कर रहे हैं बहुत छोटी कंपनी है. For a minister's attention or a secretary level's attention, you can go and explain कि ये challenge है, they will listen and they will do their best to sort. और क्या expect कर सकते हो? That is wonderful. Startup India, मुद्रा loans ये सब पहले हुई हैं. It's real. Sometimes it's really making an effect in order to make sure it's embracing the society well. On talent,
आई थिंक टैलेंट में भी राधिका अवेलेबिलिटी की तो कभी कमी नहीं है इंडिया में. पर स्किल टैलेंट की बात होती है ना. वो डिपेंड करता है फाउंडर पे. देखिए क्यों, क्योंकि आई थिंक दो फंक्शंस बड़े अंडर द रडार रहे हैं फाउंडर के लिए, स्टार्टअप के लिए, फाइनेंस और एचआर. जनरली इफ यू सी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हु हैव डन वेल इन इंडिया आर द फाउंडर्स हु हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एचआर एंड फाइनेंस वेल. क्योंकि टीम मैनेजमेंट, मतलब इट साउंड्स वेरी बेसिक. I learned a lot of things from Shumantu here sitting. We were talking about the other things. But team management is so is spoken about कि ज़रूरी होता है. But it's not human. A lot of people as founders are not able to relate with people. उनको लगता है हमें प्रोडक्ट पता है, हमें पता है कैसे करना है, तुम चलो हमारे साथ, बट कोई गाइडेंस नहीं है, कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहे. The reason why they're successful, they have thought through their management. His co-founders have been co-founders since day one. His co-founders and his team, I've seen day one, very sharp. So they've thought about their talent. तो talent है और skill talent भी available हो जाएगा अगर founder अच्छी तरह से communicate कर रहे हैं क्या चाहिए और किस time पे चाहिए. Wonderful. We have to close the session now. एक लाइन में आप लोगों से जानना चाहूंगी your idea of India as an entrepreneur. आई थिंक जैसा मैंने पहले भी कहा, हम स्वर्णिम काल में हैं. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं. जो हो रहा है बस वही करते रहना है हम सबको, एंड ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर बने, उससे बहुत फायदा हमारे देश को होगा. एंड ये ऑलरेडी बदलाव मैं तो बहुत अच्छे से देख रहा हूं, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूं अगले 10, 20, 30 साल को लेकर. हम 2027 में हम सब फोरकास्ट देख रहे कि इंडिया थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी. फ्रॉम 5th to 3rd का जो ग्रोथ हम देख रहे हैं. एंड आई फील अगर हम सब इस इकोसिस्टम में साथ में लग के काम करें, आज 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं, वो नंबर अगर 10 लाख स्टार्टअप्स हो जाते हैं, पूरे इकोसिस्टम की वो मैच्योरिटी हो जाएगी दैट इंडिया विल प्रोबेबली सरपास यूएस एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड द काइंड ऑफ इनोवेशन इंडिया से निकल के आ सकते हैं. वंडरफुल. फाइनल वर्ड टू यू ईशप्रीत. आइडिया ऑफ इंडिया. आइडिया ऑफ इंडिया, मैं आपको ये एक द बॉटम लाइन एट आवर एंड इज कि हमने आखिरी 6-7 साल में कुछ 8-10 हज़ार करोड़ कमिट किए हैं, 10,000 करोड़ के आसपास. हम हर साल 8-10 हज़ार करोड़ कमिट करना चाहते हैं, एंड दैट्स द थॉट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कैरी. सो इन्वेस्टर्स आर रेडी, ecosystem is ready, government is ready to support. Best time to start the business in India. That's about it. The best time is now. Yes. Thank you so much, the three of you, for joining us and taking us through your journeys. I'd like to request Sumanta Datta, our CEO, to please join us and felicitate our wonderful guests, and also requesting Dr. Rajiv Gupta, Director Marketing, Sharda University. If you're in the hall, sir, please join us in this felicitation ceremony. A round of applause, please, ladies and gentlemen. Thank you once again, Sneh. And thank you to you as well, Ishpreet. I think we could take a group picture. Thank you all very much.